Welcome, fellas. Today we are here to discuss an important social issue, the educational inequality. For this reason, we have gathered some information and stats supporting this dynamic issue. First, let's dive into our documentary. Education is the cornerstone of a just and equitable society. It empowers individuals with knowledge, skills, and opportunities. However, access to quality education is not equal. Millions of children face significant barriers to education. Addressing this inequality is an urgent necessity. The roots of educational inequality run deep, intertwined with historical injustices and systemic discrimination. For centuries, access to education was a privilege reserved for the elite, often determined by race, gender, and socio-economic status. While progress has been made, historical injustices still cast a long shadow on educational systems worldwide. To truly grasp educational inequality, we must hear the stories of those affected. Consider the contrasting experiences of two students, Sarah and Maria. My school has small class sizes, experienced teachers, and ample resources. My classes are overcrowded and resources are scarce. These stories reflect the stark realities of educational inequality. Educational inequality impacts individuals, communities, and society. It perpetuates poverty and limits social mobility. Higher education leads to better jobs and health. Lack of education results in unemployment and poor health. Addressing this issue is a social necessity. Bridging the educational gap requires a multifaceted approach that addresses systemic barriers and historical injustices. Policymakers, educators, and communities all have crucial roles in creating a more equitable educational landscape. Section 6. Technology's role in bridging the gap. Technology can bridge the educational gap if implemented thoughtfully and equitably. Access alone isn't enough. Quality digital literacy programs and ongoing support are essential. Personalized learning experiences and adaptive platforms can address individual needs. Section 7. Empowering communities, empowering futures. Empowering communities gives them a voice in shaping their children's education. This includes fostering strong partnerships between schools, families, and communities. Parent and community involvement is crucial for a supportive learning environment. When parents are engaged, students are more likely to succeed. Section 8. A call to action, our shared responsibility. Addressing educational inequality is a collective responsibility that requires the active participation of individuals, communities, and organizations. We can all make a difference by supporting organizations that improve educational opportunities for underserved communities. This includes volunteering our time, donating to educational charities, or advocating for policies that promote educational equity. We can also make a difference by mentoring a student, tutoring at a local school, or simply talking to our children about the importance of education. Every action, no matter how small, can contribute to a more just and equitable educational landscape. Section 9. Towards a brighter future. Education for all. Education is a fundamental human right. It unlocks potential and fosters social mobility. Achieving educational equality requires sustained effort. By working together and investing in quality education, we can create a brighter future for all. The time for action is now. Let's bridge the gap. Now after this, we also gather people's opinion about education equality. Let's move on then. Your opinion about education equality, जैसे कि हम देखते हैं कि गांव देहात में जो स्टैंडर्ड है वो लो है और शहर में बहुत ज़्यादा मॉडर्नाइज है, तो इसके बारे में आपका ओपिनियन क्या है? यार इस बारे में मेरा ओपिनियन ये है कि जैसे कि हमें यहाँ फैसिलिटीज़ दी जाती हैं, स्कॉलरशिप वगैरह, अगर यही फैसिलिटीज़ उनको भी दी जाएँ, वहाँ के टीचर अच्छे हो जाएँ, सब कुछ अच्छा हो जाए, तो मेरा मानना है कि वहाँ के भी जो है ना स्टूडेंट्स आगे बढ़ सकते हैं। सही। So what is your opinion on the education inequality on the basis of gender? इनइक्वालिटी है हमारे कंट्री में, क्योंकि अगर देखा जाए तो फैमिली बैकग्राउंड पे मोस्टली हमारे पाकिस्तान में बैकग्राउंड में गर्ल्स को नहीं पढ़ाया जाता, बॉयज़ को पढ़ाया जाता है। लाइक गर्ल्स को सिर्फ एक महदूद हद तक देखा गया है कि वो सिर्फ मेडिकल की फील्ड्स में जाए, कि मेडिकल फील्ड इज बेटर फॉर गर्ल्स, या फिर टीचिंग की फील्ड्स में, इस तरह की फील्ड्स में गर्ल्स को आगे मैदान में नहीं लाया जाता, जो कि एक तरफ हमारे लिए बहुत मतलब एक कमी है ये कह सकते हैं, क्योंकि गर्ल्स के लिए बॉयज़ से ज़्यादा एजुकेटेड होना ज़रूरी है मेरे ख्याल से।
क्योंकि एक लड़का है वो किसी तरह भी अपनी स्किल्स को मैनेज करते हुए कमा लेता है, लेकिन जो मुआशरा है ना, जो घर का निज़ाम है, वो लड़की चलाती है। इस हिसाब से गर्ल्स का एजुकेटेड होना ज़रूरी है। थैंक यू, वेलकम। योर ओपिनियन अबाउट एजुकेशन इनक्वालिटी, जैसे कि हम ले लें कि कराची बोर्ड ओ लेवल्स बोर्ड में जो डिफरेंस है उसके बारे में आपका क्या ओपिनियन है? बहुत मेगा डिफरेंस है हमारे एजुकेशन सिस्टम में। जहाँ अगर बात की जाए ओ लेवल्स की तो वो बहुत एडवांस और अप टू डेट है। जो हमारा वर्ल्ड वाइड एजुकेशन सिस्टम है वो ओ लेवल को साथ लेकर चलता है। जो जो न्यू ट्रेंड आती हैं, जो न्यू एजुकेशन पर जो भी मतलब चीज़ें होती हैं ओ लेवल उसको साथ ले जाते हैं और जो स्टूडेंट होते हैं वो एडवांस होते हैं। तो उसी के मुकाबले में अगर हम बात करते हैं सिंध बोर्ड की, तो सब मतलब वही 90 चला कोर्स अभी तक चल रहा है। हमारी जो हुकूमत है मतलब इस कोर्स के ऊपर हमारे एजुकेशनल सिस्टम में काम नहीं करती और ना ही कोई एक्शन लेती है। तो जिस वजह से अगर जो स्टूडेंट्स हैं वो अपनी फुल 100% दे भी दें, फिर भी मतलब अगर वो पाकिस्तान से बाहर वर्ल्ड वाइड जाएंगे तो उनका इतना स्कोप नहीं होता। तो मेरा यही मसला है कि हमारी हुकूमत को हमारे जितने लोकल बोर्ड्स हैं उन्हें अपना कोर्स अपडेट करना चाहिए, ताकि जो स्टूडेंट्स हैं वो इस वर्ल्ड के साथ साथ चल सकें। हम बहुत टाइम से पीछे चल रहे हैं, यही मेन मसला है। थैंक यू। So that's what is your opinion on the education equality on the basis of nepotism? नेपोटिज्म समझा नहीं मैं आपकी बात, उर्दू में समझा। आप एजुकेशन जो इनइक्वालिटी आ रही है, किसी को फेवर कर देते हैं, अपनी बरादरी को ही लोग फेवर कर देते हैं, अपनी कास्ट को फेवर कर देते हैं, उसमें आप थोड़ा आपका ओपिनियन क्या है मैं वो जानना चाहता हूँ, आपकी राय क्या है? यार बिल्कुल है, बहुत है, ये बड़ा चल रहा है ये आजकल ना, बहुत चल रहा है। इधर बैरिया में भी कहीं कहीं है, बाहर भी बहुत है, सिंध में तो बहुत है। ये हमारी बरादरी है। तो भाई अब मेरा कज़न है, उसने 10वीं की है, इसी तरह एक काल कमाई डिग्री घर पे, अब उसको मिल गया है किधर, गवर्नमेंट ऑफिसर है वो 17वें ग्रेड का। बेसिकली आप सिंधी हैं? हाँ हम सिंधी है। अभी इधर हमारा एडमिशन कैसे हुआ, हमारा कितने पे था नाम, हमारा सॉफ्टवेयर में आया था, हमारा नाम था कोई 200-300 पे था। हमने 2 काल घुमाया 2 काल इधर, बस हमको कॉल किया कि सर आ जाए अपना एडमिशन फॉर्म ले जाए। नेपोटिज्म है यार, पर मैं कहता हूँ यार होना नहीं चाहिए, पर हम लोग तो बस क्या करें, अभी पढ़ा जाता नहीं है। हमने बोला डिग्री तो आपको नहीं लगता है कि ये नेपोटिज्म की वजह से, जैसे कि आपको एडमिशन मिल गया तो बहुत सारे हमारे स्किल्ड पीपल जो पीछे रह गए हैं? हाँ होता है ऐसा बहुत होता है, पर ये मैं एक बात कहूँगा आपको, स्किल्ड पीपल पीछे रह रहे हैं तो ये आप लोगों को लग रहा है, और जो स्किल्ड है ना वो खुद पीछे रह रहे हैं। उसको चाहिए अपने लिए आवाज उठाए, अगर उसके पास कोई स्किल है वो उसको यूज करके कमाए कुछ। बहुत से ऐसे, मेरा दोस्त है पर्सनली, वो एक डेटा साइंटिस्ट है, वो मेरे को बता रहा था वो मंथली कितना कमाता है आपको पता है? मंथली 17 लाख कमाता है। वो यूएस की कंपनी में काम कर रहा है, इधर घर से बैठ के काम करता है वो। और वो यूनिवर्सिटी नहीं गया, यूनिवर्सिटी का पहला सेमेस्टर पढ़ा उसने, उसके बाद छोड़ दी उसने। बोला यूनिवर्सिटी में बोलता है यही सीन चलता है, बोलता है मेरे साथ 2 सिंधी लोग हैं, सही है वो तो जैसे कि हम लोगों ने जाना लोगों के ओपिनियंस और आपको डॉक्यूमेंट्री भी दिखाई, तो हम इस कंक्लूजन पे पहुंचे हैं कि हमारे एजुकेशन सिस्टम में बहुत गैप्स हैं। जैसे कि लोग लड़कियों को एजुकेट नहीं करते, उनको इतनी इंपॉर्टेंस नहीं देते। दूसरा पॉइंट हमारा ये है कि इस तरीके से हमारा एजुकेशन सिस्टम है, सबकी एजुकेशन जो है वो सेम नहीं है। बहुत से लोग आउटडेटेड कोर्स पढ़ रहे हैं, तो हम सबको एक लेवल बनाना चाहिए और सबको एक सेम टाइप की एजुकेशन देनी चाहिए, ताकि हर कोई अपनी जिंदगी में एक्सेल कर सके। तीसरा पॉइंट हमारे पास ये था कि हमारे पास बहुत सारे ऐसे जगह हैं जहाँ पे फ्यूडल सिस्टम और कास्ट सिस्टम है, जहाँ पे नेपोटिज्म हो जाता है, तो वहाँ पे भी हम उसके खिलाफ आवाज़ उठानी चाहिए